क्या देखिए क्वेश्चन में गाइस, a short cast iron, that is page number 20, short cast iron carries a load of 50 ton. 50 ton का लोड देखिए, ओके 50 ton, it is nothing but a 50,000 kg. Okay, if the original diameter it is 8 centimeter, E modulus of velocity is equals to 10 raised to the power 6 kg per centimeter square and Poisson's ratio is equals to 0.25. The increase in diameter in column, increase in diameter, okay, increase in diameter in the column centimeter would be, okay, increase in diameter निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है, lateral strain निकालना है. We want to calculate lateral strain. Okay, so how we can calculate a lateral strain? We have the Poisson's ratio. So इससे हम lateral strain निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे क्या देखे, मुझे longitudinal पे axial load देखे, I have a axial load, तो axial load से मैं axial strain निकाल सकता. Axial strain is nothing but a longitudinal strain. Longitudinal strain into the Poisson's ratio, that is nothing but a lateral strain. How? देखो हम सॉल्व करते हैं. ओके, पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 20. गिवन इज P is equals to 50 ton. 50 ton is nothing but 50,000 kg. Why I'm taking kg? Because of that density, sorry, modulus of velocity, it is in given, E it is in given kg. E it is equals to 1 into 10 to the power 6 kg per centimeter square. Diameter is given, dia is given 8 centimeter. So just like this is a bar, okay, so that P it is acting. तो ये इंक्रीज कितना हो रहा है डायमीटर, ये आपको पूछा है. उसके लिए आपको न्यू पॉइजन्स रेशियो इज गिवन. पॉइजन्स रेशियो इज 0.25. पॉइजन्स रेशियो इज 0.25. ओके, सो 0.25 पॉइजन्स रेशियो के लिए ओके आपको लैटरल स्ट्रेनिंग पूछा है. P is equals to 50,000 के लिए. So changing length it is equals to, guys, changing length is equals to, that is length PL upon AE. There is length is given, any value about length? No given. Increasing diameter is given, increasing diameter पूछा है. So length is not given, length is not given. So we have a stress, we have a stress. So मुझे अभी क्या निकालना है, मुझे अभी ये निकालना है, क्या lateral strain निकालना है. तो how I'm calculating lateral strain? We have nu is equals to lateral strain to the linear strain. Lateral straining is nothing but, ओके, इस तरह मैं इसको बोल सकता. नेक्स्ट या फिर आई एम सेइंग लाइक दिस, lateral linear. Okay, so in the direction stress, what is the stress? That is P by A. What is P? Area what is stress? What is stress?
What is stress, guys? 994.72. 994.72 kg per centimeter square. So next it is straining, linear straining. Linear straining, it is equals to, what is strain? Stress by modulus of velocity. How? Hooke's law. Stress modulus of velocity is equals to stress by strain. So strain कौन सा? Linear. ओके, दैट्स व्हाई ये लीनियर स्ट्रेन इधर चले जाएगा, ई इधर आ जाएगा, तो लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी डी. स्ट्रेस, वी हैव अ स्ट्रेस, we have a modulus of velocity. What is strain? What is strain? Without calculating, without using L, we can calculate a strain. मैं लेंथ का यूज ना करते हुए भी मैं स्ट्रेन निकाल सकता. लेंथ का यूज करते हुए मैं स्ट्रेन कैसे निकाल सकता? स्ट्रेस बाय चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रेन. लेकिन लेंथ है क्या मेरे पास? नहीं है. तो मैं मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी के इससे मैं जा सकता, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेस तो मैं निकाल सकता हूं, मेरे पास एरिया भी है, डायमीटर है मेरे पास, दैट इज अ डायमीटर d, इट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो उससे मैंने a निकाल दिया, एंड मेरे पास लोड है, तो लोड से मैंने क्या निकाल दिया? स्ट्रेस निकाल दिया. तो स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, दैट इज नथिंग बट अ kg per centimeter square, and also here is kg per centimeter square. तो both are cancel, तो बचा क्या? No unit. That's why strain. Okay, next बताओ क्या आएगा strain? What is strain? 994.72 divided by 10 to the power 6. 9.947 into 10 to the power minus 4. Minus 2. Minus 4. 9.9472 into 10 to the power minus 4. Okay, minus 4. That is a strain. We have a new. अब यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन मुझे पता है, तो लीनियर स्ट्रेन मुझे क्या चाहिए? लैटरल स्ट्रेन चाहिए. तो न्यू इनटू लीनियर स्ट्रेन, दैट इज नथिंग बट अ लैटरल स्ट्रेन. न्यू इनटू लीनियर स्ट्रेन, it is equals to lateral strain. So E lateral is equals to 0.25 into this. How much? आंसर खत्म. ओके, ये इससे अपन ने ये इसको इधर इनटू कर दिया, तो लैटरल स्ट्रेन मुझे मिल गया. ओके, 2.486 into 10 to the power minus 4. 2.4868 into 10 to the power of minus 4. 0.00198 ऐसी आ रहा है. सर ते स्ट्रेस बाय पी पाहिजे ना तिथे, तर ते 0.02 येतं. कुठे स्ट्रेस बाय पी पाहिजे? हे बरोबर आहे सगळं, इथे काही चुकलेलं नाही आहे. ये बराबर है क्या? या फिर ये डायरेक्टली ऐसी भी लिख सकता ना मैं? 994.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. तो माइनस 4 भी बराबर ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है. 0.25 इंटू दिस कितना आ रहा बोले आप? 2.4868 into 10 to the power minus 4.
-4, ठीक है, यहाँ पे आंसर गलत होगा मे बी। तो आपको क्या चाहिए अभी? चेंजिंग डी चाहिए, चेंजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग डायमीटर चाहिए। इंक्रीजिंग डायमीटर, सो D2 चाहिए आपको, D1 आपके पास है, D2 चाहिए इंक्रीजिंग डायमीटर। तो इंक्रीजिंग डायमीटर यानी क्या होगा कि कितना इंक्रीज हो रहा वो चाहिए, D2 नहीं चाहिए, कितना इंक्रीज हो रहा वो चाहिए, यानी चेंजिंग D। इंक्रीजिंग डायमीटर इज नथिंग बट अ चेंजिंग D। सो lateral strength, it is equals to changing D to the original D, changing D to the original D. We have a changing D and a lateral strength. We want changing D to the original D, it is 8 centimeter. तो सेंटीमीटर्स में मिलेगा मुझे। How much? (1.989 into 10 to the power minus 3). चेंजिंग डी, ओके इतना है, यानी D2 कितना हो जाएगा फिर? D2 बिकम्स इंक्रीज होके, वो D1 8 सेंटीमीटर है, 8 प्लस 0.00198 that is nothing but 8.001989 centimeters, diameter 2। ओके, इंक्रीजिंग डायमीटर, इंक्रीज कितने से हो रहा है? 0.001989 से इंक्रीज हो रहा है, वो आपको पूछा था। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? अ स्पेरिकल बॉल ऑफ volume 20 meter cube is placed under a strain, a certain liquid placed under a certain liquid where in the ball is subjected to uniform hydrostatic pressure। यूनिफॉर्म हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आ रहा है यानी सभी जगह से प्रेशर लग रहा है उसको, तो सभी जगह से प्रेशर क्या में लगता? बल्क में लगता, बल्क डेंसिटी। ओके, सो uniform hydrostatic pressure 200 MPa if the material of the ball has a bulk modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity K, it is equals to 2.5 into 10 to the power minus 10 to the power 5 MPa. Poisson's ratio is given 0.3. Then due to hydrostatic pressure, volume of ball will change by, वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना चेंज हो रहा वो आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना चेंज हो रहा वो आपको निकालना है। ओके, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। मैं आपको 2 मिनट नहीं, हाँ 2 मिनट दे रहा, 2 मिनट में आंसर बता दो, क्या आंसर आता? व्हाट इज आंसर? K, it is equals to stress upon strain।
सर सी 0.016. एग्जैक्ट आंसर सी 0.016 एग्जैक्ट आंसर। हाउ देखो क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 20। क्या देखिए क्वेश्चन में ये देखिए वॉल्यूम ऑफ बॉल इट इज इक्वल्स टू 20 मीटर क्यूब। बल्क स्ट्रेस इट इज इक्वल्स टू 200 MPa। बल्क स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस सिग्मा वी बोल सकता मैं। ओके एंड नेक्स्ट इट इज के it is given 2.5 into 10 raised to the power 5 न्यूटन पर mm square MPa। पॉइजन्स रेशियो इज गिवन जिसकी जरूरत नहीं है लेकिन देखिए 0.3। पॉइजन्स रेशियो अगर 0.5 रहता था तो क्या होता था? If the Poisson's ratio is 0.5 Incompressible material. okay and Poisson's ratio is 0 Rigid. yes exactly rigid material। इनकॉम्प्रेसिबल के लिए चेंजिंग लेंथ क्या रहता? जीरो गाइस। बल्क मॉडुलस इट इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। ओके देखो अभी क्या है 2.5 into 10 raised to the power 5 it is equals to stress। what is stress? 200। what is strength? changing volume upon original volume। we want changing volume divided by original volume is 20 मीटर क्यूब। that is nothing but न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मुझे मीटर क्यूब का mm क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ कैन आई डू दिस? मीटर क्यूब mm क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 raised to the power 9 1000 डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा मुझे। डिवाइड बाय या इनटू? मैं फिर से बोल रहा डिवाइड बाय और इनटू 20 Divide. नाउ 20 मीटर क्यूब का mm क्यूब में मीटर का mm में करने के लिए 1000 करते ना तो वैसे ही मुझे इनटू करना पड़ेगा ना। इनटू 1000 यानी 20 into 10 raised to the power 9 that is volume mm cube। that is nothing but ओके सो ये ऊपर चले जाएगा या फिर आप इसको तो होल टर्म को इधर ले सकते या फिर इसको ऊपर ले सकते और इसको डिवाइड कर सकते। हाउ मच कितनी म्हटलं आता वैल्यू 0.016 1 मिनट गाइस दैट इज इन मीटर। ये अभी क्या में निकलेंगी mm में। mm का बाद में मीटर में करना पड़ेगा आपको क्योंकि मीटर में पूछा है। ओके 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 सॉरी ये करने की जरूरत ही नहीं है मीटर क्योंकि मीटर क्यूब में पूछा है वैल्यू इट इज इन मीटर क्यूब। ये करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? 1 मिनट MPa गेट कैंसिल चेंजिंग वॉल्यूम मीटर क्यूब तो मीटर क्यूब में मुझे चेंजिंग वॉल्यूम चाहिए इसलिए 20 ही होना। ओके 20 ऊपर चले जाएगा तो यहां से चेंजिंग वॉल्यूम का आंसर आ जाता 0.016 मीटर क्यूब। ओके चेंजिंग वॉल्यूम ये 20 ऊपर ले लो 200 into 20 ये इधर ले लो और इसको इधर ले लो आंसर आ जाता है। ओके नेक्स्ट करते पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 1। बाकी सॉल्व वाले प्लीज आप देख लो क्वेश्चंस देख लो सॉल्व वाले अच्छे क्वेश्चंस है मजा आती क्वेश्चंस करते वक्त 100 में ना इसलिए मजा ही जाती। नेक्स्ट
दिस इज द क्वेश्चन. क्या बोला है? एन इलास्टिक बॉडी सब्जेक्टेड टू subjected to direct compression stress P. Direct compression stress P. ओके, थोड़ा और ट्राई करो, तक मैं मिटा देता. ओके, क्या बोला है? An elastic body is subjected to a direct compressive stress P in longitudinal direction. Longitudinal direction. Okay. Longitudinal direction are prevented by applying Py and Pz. Prevented by applying Py and Pz in the direction. Then Py it is equals to in those direction. Okay, then Py it is equals to Pz is equal to nu Poisson's ratio. Is equals to nu Poisson's ratio. Okay. Py it is equals to Pz is equals to P आपको देके है. Okay. तो Py is equals to Pz it's equal to okay. Nu is equals to Poisson's ratio ऐसे आपको बोला है. Nu is equals to Poisson's ratio आपको बोला है. Lateral strain condition is given. What condition is given? Condition is given, guys. If the lateral strain in other two directions are prevented by Py and Pz. Okay, Py और Pz से lateral straining क्या कर रहे हैं? Prevent कर रहे हैं. That is in preventing. Okay, देखो. What is the question? Okay, what is the question? So that is preventing. Again question number 1, but page number 26. Page number 26. That is Py. That is Px. Px. Here is Pz. Pz. Given Py is equals to Pz is equals to P. Generalize Hooke's law by generalized Hooke's law. क्या बोलता है? Sigma x is equals to minus px. Sigma x is equals to minus px. Sigma y it is equals to, अब sigma x is equals to minus px जनरलाइज हुक्स लॉ बोल रहा है. आप बोलेंगे सर ये कैसी है? सिग्मा स्ट्रेस इज इक्वल्स टू माइनस पी वाई क्यू. कॉम्प्रेशन कर रहा ना गाइस, दैट्स व्हाई माइनस पी एक्स. ओके, माइनस पी एक्स.
and again these two are again compression. Okay, here is py भी बोल सकते हैं अपन. py it is nothing but a pe. pz it is nothing but a pe. It's p. So sigma y it is equals to minus p. Sigma z is equals to again minus p. Compression. And also given कौन रेजिस्ट कर रहा है? लैटरल स्ट्रेनिंग पी वाई एंड पी जेड रेजिस्ट कर रहा है, हो ही नहीं दे रहा. सो दैट्स वाई 0 ऐसी बोला है. पी वाई और पी जेड रेजिस्ट कर रहा है लैटरल स्ट्रेनिंग इन द टू डायरेक्शंस. सो दैट्स वाई 0. ओके, सो अभी बचा क्या? इक्वेशन है अपने पास ई वाई इट इज इक्वल्स टू sigma y by e minus nu into sigma z by e minus nu into sigma x by e. ये हमने डिराइव किया है. 0 is equals to minus p by e minus nu into p by minus p by e again minus of nu into minus px by e. Okay. Next, what is P? What is P in terms of nu? P by E. So guys, ये मैं क्या कर सकता? माइनस ऑफ माइनस प्लस वो मैं इधर लेके जा सकता. P by E it is equals to P nu by E प्लस px nu by e. ओके, ये इसी मैं लिख सकता, प्लस मैं बोल सकता उसको. ओके, देन e गेट कैंसिल. तो बचता क्या? बचता ये p न्यू प्लस px न्यू it is equals to p. So nu p plus px, nu p plus px it is equals to p. 1 minute, मैं क्या कर लेता? p को p के टर्म्स को इधर ले लेता. आप बोलेंगे सर यस p के टर्म्स को इन टर्म्स ऑफ p में चाहिए ना, p इन टर्म्स ऑफ px चाहिए मुझे. सो क्योंकि ऑप्शन ही वैसी है. ओके, सो p टर्म्स ऑफ px इट इज इक्वल्स टू इधर ले लेता p माइनस p इंटू न्यू या फिर न्यू p इट इज इक्वल्स टू न्यू px. ऐसे आगे पीछे लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. p बाहर निकाल लो, 1 माइनस न्यू px, p इज इक्वल्स टू न्यू px डिवाइड बाय 1 माइनस न्यू. दिस इज द आंसर. कोई आंसर है क्या? देख लो. यस एग्जैक्टली, न्यू px डिवाइड बाय 1 माइनस न्यू, दैट इज d इज द आंसर. d इज द आंसर. ओके, आप बोलेंगे सर ये जनरलाइज वगैरह कहां से लाया आपने? सो गाइज यहाँ पे माइनस इसीलिए लिया है बिकॉज ऑफ कंप्रेशन. कंप्रेशन क्यों होगा? क्यों कंप्रेशन होगा? बिकॉज ऑफ चेंजिंग लेंथ नहीं होने दे रहा. अब चेंजिंग लेंथ वहां पे कंप्रेशन में ही कैसी होगी? तो कंप्रेशन आपका x कंप्रेशन में है, ये बोला है सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कंप्रेशन p, ऐसी बोला है आपका. सो डायरेक्ट कंप्रेशन p बोला है इसीलिए माइनस. डायरेक्ट टेंसाइल बोला रहता था प्लस, डायरेक्ट टेंसाइल बोला रहता था प्लस. वहां पे क्या बोला है? कंप्रेशन बोला गया है, डायरेक्ट कंप्रेशन बोला गया है क्वेश्चन में. दैट्स व्हाई वी टेकन अ माइनस. इफ इट इज डायरेक्ट टेंसाइल अगर बोला गया रहता, सो वी टेकन पॉजिटिव.
ओके। और एक चीज आप बोलेंगे सर, अगर एक्सियल डायरेक्शन में मैंने अगर ये लगा लिया, कंप्रेशन लगा लिया, तो बाकी के डायरेक्शन में तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। तो एक्सपांड होने के कारण वहां पे तो इंटरनल स्ट्रेस मेरा टेंसाइल में रहेगा। लेकिन गाइस वहां पे उन्होंने सेंटेंस क्या बोला है कि वो पी एक्स और पी जेड एंड आपका पी वाई ये दोनों रोक रहे हैं। ये दोनों क्या रोक रहे हैं, डिफॉर्मेशन रोक रहे हैं। डिफॉर्मेशन कब रोकेंगे, जब वो कंप्रेस करेंगे तभी रोकेंगे। दैट्स व्हाई कंप्रेशन, दैट्स व्हाई इट इज इन पी वाई एंड पी जेड ऑल्सो नेगेटिव। ओके, क्योंकि ई वाई एंड ई जेड इज इक्वल टू जीरो। ई वाई एंड ई जेड इज इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट it is question number 2. What is question number 2, guys? What is question number 2? पढ़ो। A hole is to be punched in a plate of 10 mm thick. 10 mm thick में होल पंच कर दिया। To allowable crushing stress of the punch is 4 times of the shear stress of plate. पंचिंग फिर से पढ़ो। द allowable crushing stress of punch is 4 times the shear stress of plate. 4 times shear stress of plate. The diameter of smallest hole that can be punched in the plate in mm is. स्मॉलेस्ट होल का जो है वो डायमीटर कितना है वो आपको पूछा है। प्लेट का डायमीटर, प्लेट का थिकनेस अगर 10 देके है तो इसके लिए इसका डायमीटर आपको पूछा है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो हाउ, थोड़ा ध्यान से देखो, नहीं समझता ये क्वेश्चंस ऐसे चले जाते हैं। ओके, सो प्लीज ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 26, प्लीज ध्यान से देखो। सो क्या बोला है आपको, ये बोला है कि एक प्लेट है आपके पास, प्लेट सीधी जा रही है इसलिए काट दिया उसको मैंने वहां से। वहां पे एक होल आप कर रहे हैं पंचिंग करके। पंचिंग कैसे करोगे गैस, पंचिंग मशीन से पंचिंग करोगे। पंचिंग मशीन से आप पंच करोगे तो वो पंच हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पंच हो जाएगा। पंच होके कुछ इस तरह वो दिखेगा। टेन mm थिक वाला, थिकनेस इज गिवन 10 mm। तो स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द होल आपको अभी निकालना है कि स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द होल आपका कितना रहेगा, ये आपको पूछा है। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो सबसे पहले दैट इज थिकनेस ऑफ ये होल है। ओके, सो गाइस ये जो भी अभी स्ट्रेस है, जो ये एरिया पे लगेगा, दैट इज अप्लाइड फोर्स। एक मिनट, आपको इतने ऊपर का नहीं दिख रहा होगा ना, एक मिनट। दैट इज
applied force P is equals to stress into pi by 4 into d square. ओके तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब 1 मिनट, यहाँ पे जब आपका अप्लाइड फोर्स ये है तो यहाँ पे एक रेजिस्टिंग फोर्स आएगा. That resisting force is there, and that D and that T. Okay, so resisting force is equals to, resisting force कौन सा, ये वाला, resisting force is equals to tau is nothing but a shear stress or shear stress into the area. Resisting force is equals to shear stress into the shear area. Shear stress into the shear area, that is nothing but a shear stress. Shear stress into the shear area. So resisting force tau into what is shear area, pi d. It is pi d is the whole circumference into thickness, it is the area. Pi d circumference into thickness, that is nothing but a shear area. Shear area. अब आपको क्या बोला है, आपको गिवन क्या देके, गिवन देके है कि डायरेक्ट स्ट्रेस इज 4 टाइम्स ऑफ shear stress. मैं फिर से वो सेंटेंस पढ़ता, फिर से आपको लेके जाता वो सेंटेंस में, क्योंकि वो जरूरी है. Allowable crushing stress, that crushing is nothing but allowable crushing stress of the punch is 4 times crushing is nothing but a direct stress. Crushing is nothing but a direct stress. So crushing is nothing but a direct stress. That direct stress is 4 times of the shear stress of the plate. 4 times of the plate. अब यहां से तो आपका निकल जाता गाइस. अब मैंने तो दोनों लिख दिया है, आप निकाल सकते हैं. What? This is into 4 times of this. This into 4 times of this. आप बोलेंगे सर what is stress now? अरे tau shear force to the area. Okay, shear force to the area. Applied force stress. अब stress it is equals to, तो ये तो आपको पता चल गया, तो P by A. Here is again P. रेजिस्टिंग फोर्स भी क्या रहेगा, P ही रहेगा ना. रेजिस्टिंग फोर्स क्या रहेगा देखो. सो मैं ये बोल सकता, यहाँ पे ये क्या बोल सकता मैं, फोर्स का क्या बोल सकता, अप्लाइड फोर्स इट इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैं ये कर सकता, अप्लाइड फोर्स इट इज इक्वल्स टू रेजिस्टिंग फोर्स. अप्लाइड फोर्स मिनिमम चाहिए आपको, अप्लाइड टू रेजिस्टिंग. What is applied force? Stress. यहाँ पे क्या है, 4 टाइम्स ऑफ टाउ. अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टाउ है, तो टाउ मत लिखो, सबसे पहले टाउ के इसमें लिख लो, टाउ टू पाई डी टी. सो दैट इज नथिंग बट अ टाउ, 4 टाइम्स ऑफ टाउ, दैट पाई गेट कैंसल. ओके, यहाँ पे 1/4, 4 गेट कैंसल, डी स्क्वायर, टाउ गेट कैंसल, टाउ गेट कैंसल, बचा क्या है, डी इंटू टी. तो आपको क्या है, डायमीटर निकालना है, थिकनेस आपके पास है. ओके, सो ये डायमीटर भी एक कैंसल, तो बचा क्या गाइस,
थिकनेस इज इक्वल्स टू आपकी कितनी है 10 mm, इट इज इक्वल्स टू डायमीटर, इट इज इक्वल्स टू डायमीटर। यानी क्या हो रहा है आपका, जितनी थिकनेस है उतना ही आप बना सकते हैं। समझे क्या क्वेश्चन को? आपको ये पूछा था कि ये स्ट्रेस के वजह से आप मिनिमम डायमीटर कितना कर सकते हो, ये आपको पूछा है। ओके, स्मॉलेस्ट यानी द डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट होल दैट कैन बी पंचेड इन द प्लेट mm में चाहिए। तो मैंने क्या किया कि पंच करने के लिए आपको क्या लगेगा, एक क्रशिंग स्ट्रेस लगेगा, दैट इज नथिंग बट अ डायरेक्ट स्ट्रेस, एंड एक शियर स्ट्रेस लगेगा। तो पंचिंग फोर्स इट इज इक्वल टू शियर फोर्स मैंने कर दिया, रेजिस्टिंग फोर्स मैंने कर दिया, पंचिंग फोर्स इट इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स। हाँ बोलो, बोलो ना। तो इक्वल तो रहना चाहिए, पंचिंग फोर्स मतलब बड़ा रहना चाहिए ना अप्लाइड तो। मिनिमम के लिए निकाल रहे आप, मिनिमम मिनिमम डायमीटर इतना रहेगा तो हो सकता, डायमीटर हो सकता। अप्लाइड फोर्स, हाँ आप बोल सकते कि अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिंग फोर्स, तभी आप होल्ड कर पाओगे। यस एग्जैक्टली, बट अगर वहां पे वो रेजिस्टिंग फोर्स इट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अगर है तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, फिर जीरो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस हो गया ना। तो जो भी कोण वहां पे आ रहा है वही कोण आपको मिलेगा आप करोगे तो। ओके, जस्ट और इक्वल्स टू अगर आप करते हो तो आपको यही कंडीशन देखे है, यानी 1 मिनट, यानी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि चेंजिंग लेंथ होगी ही नहीं, यानी होल होगा ही नहीं, ये क्वेश्चन है कि आपके दिमाग में? नहीं सर, होल होने के लिए अप्लाइड ज्यादा रहना चाहिए ना, यस एग्जैक्टली, होल होने के लिए होल अप्लाइड होगा ज्यादा, डी 10 mm का। हाँ अप्लाइड होने के लिए आपका जस्ट जस्ट फोर्स ज्यादा होना, जस्ट। तो जस्ट के लिए मिनिमम डायमीटर आपको पूछा है, तो मिनिमम डायमीटर कब रहेगा, जब रेजिस्टिंग फोर्स खत्म हो जाएगा। तो रेजिस्टिंग फोर्स इट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अगर अपन ने रखा और उससे थोड़ा अपन ने ज्यादा क्या लगा दिया, रेजिस्टिंग फोर्स लगा दिया, तो होल तो हो सकता, लेकिन मिनिमम डायमीटर ऑफ होल कितना रहेगा, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स रहेगा, मिनिमम डायमीटर ऑफ द होल। यानी मिनिमम आप उतना करोगे, उससे ज्यादा करना है तो ऑब्वियसली अप्लाइड फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। और आप बोल रहे होंगे कि नहीं सर वो तो हो नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता आपका, होल तो हो नहीं सकता क्योंकि जीरो है, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फोर्स हो गया, अप्लाइड रेजिस्टेंस जीरो, तो अप्लाइड फोर्स थोड़ा तो अपन ज्यादा बढ़ाएंगे फिर, तभी वो मिनिमम यानी इससे थोड़ा ज्यादा होगा। किससे थोड़ा ज्यादा होगा, जो भी अप्लाइड फोर्स एंड रेजिस्टिंग फोर्स है उससे थोड़ा ज्यादा होगा, जस्ट जस्ट माइन्यूट 1 न्यूटन, नॉट 1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन थोड़ा ज्यादा कर लिया अपन ने तो होल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ नो रेजिस्टेंस इज देयर। ओके, दैट्स व्हाई होल हो जाएगा। तो इसीलिए अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फोर्स। ओके, आपका माइंड वॉश कर दिया किसी ने तो भी, और आपको इधर जाना है या इधर जाना है वो समझ में ही नहीं आ रहा, आपको जस्ट एक टच कर दिया मैंने कि आपको इधर जाना है तो आप इधर ही जाओगे, जस्ट लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आई नो दैट। ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, क्या निकलता है आंसर्स बता दो प्लीज, व्हाट इज आंसर? व्हाट इज आंसर? यू हैव अ 2 minutes.
देख लेते हैं, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 26। क्या बोला है? कैंटिलीवर बीम शोन इन फिगर, क्रॉस सेक्शंस आर गिवन, एरिया इज गिवन, मैक्सिमम पी आपको निकालना है। द मैक्सिमम पी दैट विल नॉट एक्सीड स्ट्रेस, स्ट्रेस देखिए अभी यहाँ पे स्ट्रेस इन स्टील कितना देखिए 140 MPa, इन एल्यूमिनियम 90 MPa एंड ब्रॉन्ज 100 MPa। अब इतना देखिए, इसके लिए आपको एक पी चाहिए, तो ठीक है निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, आओ देखते हैं कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 26। That gun is given. छोटे बच्चे देखेंगे ये डायग्राम तो सर अभी भी गन गन खेल रहे बोलना तुम। यस एग्जैक्टली, अभी भी गन गन ही खेल रहे हम। That 2p, that p, that again 4p. ओके, अब क्या देखे हैं आपको? ये स्टील देखे, ये स्टील है, ये क्या है? एल्यूमिनियम है Al, ये क्या है? Br, ब्रॉन्ज है। सो व्हाट इज सिग्मा एक्स लिमिटेशन? 140 MPa. व्हाट इज Al लिमिटेशन? सिग्मा Al 90 MPa and sigma B that is equals to 100. Br it is equals to 100 MPa limitation. Area 400, sorry 500, 400, 200, AL, AB, AS क्या में mm स्क्वायर। इट्स गिवन। सो आप बिंदास लिख सकते हो। क्या बिंदास लिख सकते हो? फ्री बॉडी डायग्राम। here is 2p, here is 2p। अब यहाँ पे कितना चाहिए? p चाहिए, तो यहाँ पे p चाहिए करके यहाँ पे p, यहाँ पे p। क्यों? यहाँ पे क्या चाहिए? इधर साइड में p चाहिए, तो ये साइड में लगाना पड़ेगा। ऊपर देखो, इधर साइड p चाहिए, यहाँ पे मैंने कहाँ पे लगा दिया p? ये साइड p लग गया मेरा, तो एक्चुअली अगर ये साइड में फिर से p लगा दूं तो एडिशन कितना हो जाएगा? 3, 3p। 3p है क्या? नहीं है, 1p है। 1p कौन सा डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में, इसीलिए मुझे ये डायरेक्शन में p लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 4p चाहिए, यहाँ पे पहले से p लग गया है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे पहले p लग गया है, तो मैं यहाँ पे फिर से 3p लगा दूंगा। p प्लस 3p इट इज इक्वल टू 4p। यहाँ पे p, सर क्या p कर रहे बोलना? दैट इज नथिंग बट गाइस फोर्स 3p। ओके, दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3p। अब गाइस आपके पास अलाउेबल स्ट्रेस यानी इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता, ये देखिए स्ट्रेस इज नथिंग बट p बाय a। अरे गाइस निकाल लो p इन टर्म्स ऑफ p में, p में निकाल लो, ps, pb and p ये निकाल लो, आपको पता चल जाता कि कौन सा देना है। जो भी मिनिमम है वो लो और खत्म करो। बताओ ps बताओ, देन pal बताओ, या फिर pp बताओ। p अगर इससे कितना रहेगा स्ट्रेस के लिए, अपने स्टील के लिए कितना है, al के लिए कितना है और br के लिए कितना है, ये बता दो, फटाफट बताओ।
स्ट्रेस डायग्राम मैंने तोड़ के ऐसे ऐसे बनाया। आप सीधा भी बना सकते जैसे अपन बनाते हैं हरदम वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, क्योंकि ये आपको कोई नहीं पूछने वाला कि आपने कैसे निकाला। वी वांट अ आंसर। ओके, सो दैट इज बी आर एस। सो 140 it is equals to P, which P? 3P by A. A it is 500. So what is P, guys? P it is equals to 140 into 500. 23333.33. How much? 4 times 3. 2333.33. ऐसे ही है ना? Sir, 4 अंदर और times एक 3. 3. अजून अजून एक 3 आहे. अच्छा 23,000 न्यूटन. ओके, एमपी है, न्यूटन में आएगा. ये स्टील के लिए हो गया. क्या के लिए हो गया? स्टील. एल के लिए देखते हैं तो कितना है? 90. हाँ कितना है? माइनस पी डिवाइड बाय एरिया 400. सो 400 माइनस क्यू कॉम्प्रेशन ना. सो माइनस पी 90 9 चुक 36. दैट पी इट इज इक्वल्स टू इतना माइनस में. वो माइनस प्लस का कुछ लेना देना नहीं है, पी इतना रहने का. ओके, देन बी आर इट इज इक्वल्स टू 2p माइनस में. ओके, सो दैट इज नथिंग बट 100 एमपी बी आर माइनस 2p डिवाइड बाय एरिया 200. सो p it is equals to that 100. अब 2 इधर से कैंसिल कर सकते हो, 1 यहाँ पे हो जाता 100. ओके, सो 100 into 100 10,000 माइनस न्यूटन. सो 10 माइनस का कुछ लेना देना नहीं है, माइनस यानी ये 36,000 कंप्रेशन हो गया, 10,000 न्यूटन कंप्रेशन हो गया. दैट इज इन टेंसाइल. अब आपको लिमिटेशन कितना देके कि अगर आपने 10,000 से अबो अगर पी अप्लाई कर दिया क्या पे बी आर पे, तो आपका 100 से ज्यादा एमपीए स्ट्रेस आ जाएगा. 100 से ज्यादा एमपीए स्ट्रेस आ जाएगा. पी बढ़ा दिया तो स्ट्रेस बढ़ेगा. सो दैट्स व्हाई आपको लिमिटेशन चाहिए, यानी पी की लिमिट चाहिए कि आपको ये जो है, ये स्ट्रेस जो है अलाउएबल स्ट्रेस, ये बढ़ने को नहीं होना. दैट्स व्हाई टेक इट मिनिमम. टेक P minimum from above to काय के लिए? टू या फिर take minimum fee from the above for not exceeding stresses, not exceeding allowable stresses. So P it is equals to 10,000 Newton, that is nothing but a 10 kilonewton. Okay, 10,000 Newton it is equals to D is the answer. सभी डी डी आर बोल रहा हूँ, D is the answer guys. Okay, next it is question number 4. Any doubt guys? सर 3 का आंसर सी दिया है. 3 का आंसर सी दिया है.
10,000 ही है ना? 14,000 दिया है, ऐसे ऐसे बोल रहे क्या? सी दिया है, गलत है वो, गलत है, गलत है। क्या है? P इज इक्वल टू 10,000, वही है। ओके सर। हाँ, वहां पे ओके सर। आप करेक्ट कर लो। 14,000 देखे है ना, दैट 14,000 इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज 10,000 मिनिमम रहता है। ये हमने यहाँ पे भी सॉल्व किए हैं, कॉलेज के लिए भी सॉल्व किया, यानी यूनिवर्सिटी के लिए भी सॉल्व किए दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, और इनके बुकलेट में खुद ही आंसर ये है, क्या बोलते हैं आपका, 10,000 है। ओके, नेक्स्ट जो सॉल्व वाला है, क्लासरूम क्वेश्चन सॉल्व। ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, कल ही हो गया। आप बोलेंगे सर कौन सा वाला, आपने तो दिखाया नहीं। दिखा देता, ये लो। ट्रायंगल वाला। बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड is exactly. What is answer? What is answer, guys? A rigid beam ABCD is hinged at D, supported by two springs A and B, shown in figure. Okay, दो springs है. The beam is carried a P load at C. Yes. The stiffness of spring at A is 2K and at B it's K. Stiffness कितना है? K है. The ratio of force P, ratio of force of spring A to that of B, रेशियो आपको निकालना है, रेशियो आपको निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं, उस पर कोई डाउट नहीं है। Applied load to the changing length is nothing but a stiffness. Unit deformation, load upon unit deformation is nothing but a stiffness, guys. Okay. कितना निकला आंसर? How much? क्या आपको बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है बैंड का? हाँ, मत सुने, जान दो, क्वेश्चन सॉल्व करो। अब आप बोलना सर यहाँ पे तो आंसर देखे सी, आप क्यों पूछ रहे? आपका निकला कैसी, ये बताओ पहले। ट्राई कर रहे हो क्या गाइस, या बताऊं मैं बोर्ड पे डायरेक्टली? 1 मिनट रुको सर। रुकता ना।
हो गया? बताओ सर आप. बघा आतापर्यंत व्हायला पाहिजे होतं. क्वेश्चन नंबर 4. इट्स व्हेरी इजी. क्या म्हटला है इथे? यहाँ पे क्या देखे आपको? हिंज देखे एक, और यहाँ पे एक लोड लगा है ए डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, उसका के बी इट इज इक्वल टू के है स्टिफनेस, और यहाँ पे एक स्प्रिंग है के ए इट इज इक्वल टू ट्वाइस के है ए दैट इज नथिंग बट अ पी इज गिवन ना? यस, ओनली पी इज गिवन. सो सबसे पहले गाइस, सबसे पहले आप ये देख लो कि ये डिफ्लेक्शन इस तरह होगा. चेंजिंग लेंथ ऑफ ए, this is the changing length of A. Changing length of B. We have a similar triangle. Okay. Okay, we have a similar triangle. तो ये similar triangle पूरा यहाँ से बन रहा है. So अब मैं क्या बोल सकता यहाँ पे मैं ये बोल सकता, मुझे ये तो देखिए, यानी के ए इट इज इक्वल टू स्टिफनेस इज इक्वल टू 2k इट इज इक्वल टू के बी इज इक्वल टू k. ये देखिए मुझे, व्हाट इज स्टिफनेस? Stiffness is nothing but load upon changing length. Load upon changing length. That is the stiffness. अब मैं बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड मैं क्या बोल सकता? मैं ये बोल सकता कि ट्वाइस ए के लिए क्या है, यानी डेल एल बी फॉर ट्वाइस ए इट इज इक्वल टू डेल एल सी डेल एल ए इट इज फॉर थ्राइस ए. ये तो मैं बोल सकता फ्रॉम द सिमिलर ट्रायंगल, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल. और यहां पे अगर आपने थीटा ले लिया, सो tan थीटा भी बोल सकते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, उससे भी बोल सकते हैं आप. बाय सिमिलर ट्रायंगल बोलो या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बोलो, बोथ आर द सेम. ओके. सो अब आप क्या लिख सकते हैं गाइस कि ए गेट कैंसल. आप बोलेंगे सर ए कैसे कैंसिल कर सकते हैं? एल एल जैसे कैंसिल कर सकते हैं वैसे ए कैंसिल कर सकता हूं. ए गेट कैंसिल, बचा क्या? चेंजिंग लेंथ. अब व्हाट इज चेंजिंग लेंथ? चेंजिंग लेंथ इट इज इक्वल टू, दैट इज वन, चेंजिंग लेंथ ऑफ बी. ये आपको अगर चाहिए तो आप ये के को क्या लिख सकते हैं, यानी चेंजिंग लेंथ को क्या लिख सकते हैं? चेंजिंग लेंथ को आप लिख सकते हैं पी बाय के आप लिख सकते हैं. तो चेंजिंग लेंथ ऑफ बी इट इज इक्वल टू पी ए दैट इज हाँ बी सॉरी पी बी टू द PB to the KB एंड चेंजिंग लेंथ ऑफ, तो PB टू KB अपन यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं. ओके. और इसको चेंजिंग लेंथ ऑफ A को आप क्या लिख सकते हैं? वेयर PA टू द KA, ये आप लिख सकते हैं. यहाँ पे पुट कर दो ये वाले, पुट इन वन में पुट कर दो. सो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा PB बाय KB डिवाइड बाय 2 इट इज इक्वल्स टू PA बाय KA डिवाइड बाय 3. ओके. सो आपका अभी ये क्या है? KB इज इक्वल्स टू कितना है? K है. PB बाय 2K हो जाएगा. KB को मैंने डिवाइड में ले लिया एंड PA बाय ट्वाइस K है,
twice k into 3, so that 2k get cancel, बचा क्या 3. So the ratio of, रेशियो क्या पूछा है अभी, रेशियो पूछा है the ratio of spring at A to the B, यानी PA to the PB. 3 इधर चला जाएगा. दिस इज द आंसर. खत्म. समझा क्या, समझा क्या गाइस? Only this concept is important. Load upon displacement, it is nothing but a stiffness. And stiffness is inverse of flexibility, F. ये भी याद रहने को ना हरदम, मरते दम तक. ओके, यानी डिस्प्लेसमेंट टू द लोड, इट इज नथिंग बट अ फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, सो ये भी आपको याद रहने को ना, फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या है. तो ये अगर याद है तो जनरली इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा. तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए. अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा क्या, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा गाइस थर्मल स्ट्रेसेस. थर्मल, ओके थर्मल. सो आप थर्मल पढ़ो, देन हम थर्मल एंजॉय करेंगे कल से. ओके, सो अभी हम लेते हैं थोड़ी देर में, 10 मिनट में क्या लेते गाइस, विद इन द 10 minutes.